Rahman Khattak Saab and the team of PMEX, who have done a marvelous job of putting this Invest Expo. And this, I'm representing an exhibition from the other part of this Expo Center, which is Karachi International Book Fair. And this is coexisting with that, and the reason why it is there is because it's the vision of PMEX to bring this knowledge and literacy, financial literacy to the common people. And how can they achieve that is, and being part of the Karachi International Book Fair. Thank you very much for being the platinum sponsors of Karachi International Book Fair as well. It shows your commitment and dedication to the knowledge spreading. And Karachi International, briefly, I will tell you a little bit about the book fair. It is the biggest consumer event of Pakistan at the moment, with 500,000 people who visit it in 5 days. This Karachi Book Fair. Why are you interested? Because this knowledge also extends to me, lack of knowledge about PMEX. So thank you very much. And we look forward to a very successful partnership with you. And on behalf of Mr. Waqar Mateen, convener of Karachi International Book Fair and the managing committee, I thank you for your partnership and cooperation, which I hope will last for many more years to come. In the interest of time, although I have a huge speech, I'll keep it very short. But so I'll tell you, Securities and Exchange Commission of Pakistan, we are the apex regulator of the financial sector. We work very closely with PMX and other entities as well, and that's correct. Our main focus is to ensure the protection of investors' rights. Some of the other initiatives in terms of investor education that we are doing are particularly highlights our unwavering support for promoting financial literacy and investor awareness through SCCP's investor education initiatives, that is Jamma Poonji. This initiative exemplifies our dedication to fostering a culture of informed investment while protecting the rights of investors across Pakistan. Through the campaigns, we aim to reach a wider audience and ensures that individuals from all walks of life gain access to essential financial education. Your consideration will be vital in driving a national movement towards financial literacy and investor protection. By collaborating, we can create robust and sustainable financial landscape that benefits all the stakeholders. Another important aspect that I want to highlight is the technology. I believe that technology can be pivotal and can play a vital role in not only the growth of the financial sector, but also the investor education, and they can have integration with the training modules as well. So in that way, we can have a wholesome and on various levels, we can have programs and systems in place which will. Honorable Governor, His Excellency Janab Kamran Tasuri Sahab, Commissioner SCCP Janab Zishan Khattak Sahab, our President MD Mr. Khurram Parvez Sahab, the honorable guests sitting over here, Assalamu alaikum. It's my absolute pleasure to welcome you all at the Invest Expo. And on behalf of the Makassan Mercantile Exchange, our Badi Chairman, Mr. Fargun Sari, who was indisposed today and could not attend this function, I take this opportunity to warmly acknowledge and welcome all our distinguished guests. हम as low as 300 रुपए में आपका गोल्ड का अकाउंट खोल सकते हैं. गवर्नर साहब, you have been doing a great job in IT industry, और आपने लाखों लोगों को अपने पास जमा किया हुआ है, उनको IT एजुकेशन दे रहे हैं. वो स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ग्रोन अप किड्स भी हैं जो आपके पास IT सीख रहे हैं. I think this is an IT platform where your स्टूडेंट्स कैन बी थॉट कि जी पाकिस्तान में मर्केंटाइल पे कैसी ट्रेडिंग हो सकती है. और गोल्ड एक ऐसी एंटरप्राइजिंग प्रोडक्ट है कि जिसको आप 300 रुपये में, जो आपके
छोटे मुतवसत तबके वाले लोग हैं वो अपना अकाउंट खोल कर अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो उसमें बिल्टअप कर सकते हैं। उनको ना मर्केंटाइल एक्सचेंज आने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। वो किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं अपने मोबाइल फ़ोन पे और उसके ज़रिए अपना अकाउंट खोल लें और 300-300 रुपये जो है वो ऐड ऑन करते जाएं, जितनी भी अमाउंट वो चाहें। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारी बच्चों के लिए जो आपके साथ हैं वो एक लाइफ टाइम सेविंग्स जो है सिक्योर्ड सेविंग्स हो जाएगी कि जहाँ हम PMX गोल्ड इनके लिए जो है वो रिज़र्व करते रहेंगे। अच्छा, ये सारा हमने जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरेबल भी किया हुआ है कि जिस तक चाहें 24 घंटे में वो उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। वैसे तो 22.5 घंटे हमारी ट्रेडिंग होती है और अपनी गोल्ड की प्रोडक्ट की डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान की गोल्ड इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेने जा रहा है। और इस रेवोल्यूशन के तहत जो हमारा ब्लैक मार्केट में गोल्ड है वो बेसिकली वाइट मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, अकाउंटेड फॉर हो जाएगा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक गवर्नर साहब हमारे पास 4000 टन जो है वो सोना मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ शेप में लोगों के पास मौजूद है, चाहे वो स्लैब्स की शक्ल में हो, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में हो। और ये इतनी बड़ी तादाद है कि जो हमारी इकनॉमी से बाहर है। अगर एक दफ़ा ये इकनॉमी में आ गई तो हमारी इकनॉमी का जो रियल साइज़ है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। हमने इसमें बहुत सारे इक़दाम लिए हुए हैं कि कल सुबह जो है वो हम आपकी ज्वेलरी फॉर्म में भी गोल्ड जो है वो एक्सेप्ट कर सकेंगे, उसको स्टोर कर सकेंगे और हर एक को जो है वो एक PMX की गोल्ड की जो है वो ऑथेंटिसिटी देंगे कि उस पर PMX गोल्ड की जो है वो मोहर लगी हुई होगी और हम इस पर बड़ा काम करेंगे। मैं एक्नॉलेज करता हूँ फरहान ताहिर साहब से, जो हमारे पिछले हफ्ते तक MD थे, कि उन्होंने न सिर्फ इस इन्वेस्ट एक्सपो में और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो मंजर आम पर लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। गवर्नर साहब, एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हम मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लेने जा रहे हैं वो एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं और वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है। इंशाल्लाह एक आध महीने में उसको हम लॉन्च कर देंगे। आपको भी ज़हमत देंगे कि आप उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए गेम चेंजर होगा। और इस गेम चेंजर से मुराद ये है कि पाकिस्तान से ग्लोबली जो है वो हमारी कमोडिटी एक्सपोर्ट हो सकेगी। चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, एक मिनिमम क्वांटिटी ज़रूर होगी, लेकिन उसमें जिस तरह दराज के प्लेटफॉर्म पर है, जिस तरह बाकी अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म है कि आप कोई भी आइटम जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो पाकिस्तान की कमोडिटीज़ जो हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं पाकिस्तान की कमोडिटीज़, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों और आइटम्स हों, उसको ले सकेंगे। तो जो हमारा विज़न है कि इस मुल्क की माशी तरक्की में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा किरदार है, होना चाहिए और इंशाल्लाह रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस विज़न की तकमील में आपकी इनपुट, आपका साथ हमारे साथ रहेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि जो आपके IT स्टूडेंट्स हैं, आप अगर हमें इजाज़त देंगे तो वहाँ हम अपना एक छोटा सा लेट्स से एक स्पेस ले लेंगे आपके पास से, और वहाँ जो आपके लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो गोल्ड की कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीक़ाकार है कि 300 रुपये में आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। गोल्ड बार जो हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाएं और ये फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा होगा। और फिर दूसरा, उस अपने मोबाइल फ़ोन पे जब वो ट्रेडिंग करेंगे तो बाकी ट्रेडिंग्स में भी जो है उनको इंसेंटिवाइज मिलेगा कि जहाँ वो IT की तालीम ले रहे हैं, उनको पता है कि ये IT प्लेटफॉर्म है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे मैं समझता हूँ कि पूरे सारे स्टूडेंट्स भी मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे और आगे जाके मुल्क की तरक्की में एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी और हमारे चीफ गेस्ट आपकी आमद का शुक्रगुजार हूँ और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप रोस्टम पे तशरीफ़ लाएँ। 24 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की। अहमद चुनाय साहब, कराची की कितनी है? 2.5 करोड़ या 3 करोड़। मैं इनसे पूछ रहा था कि ये जो आपका एक्सचेंज है इसके टोटल मेंबर कितने हैं? ये पाकिस्तान के एक्सचेंज है, सिर्फ जो इसके एक्टिव मेंबर हैं वो 10 से 12 हज़ार होंगे और 40,000 लोग सिर्फ इसमें ट्रेड करते हैं। तो 40,000 लोगों से तो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं होता। जिस शहर की आबादी 3 करोड़ हो
जिस मुल्क की आबादी 24 करोड़ हो, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी तादाद सिर्फ 40,000। मेरे ख्याल से ये जो लफ्ज़ लिखा है ना इन्वेस्ट एक्सपो, हमने ये समझ लिया है कि इन्वेस्ट एक्सपो सेंटर में, क्योंकि 20 साल से सिर्फ यहाँ एग्जीबिशंस हो रही हैं, एक्सपो हो रही हैं, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, पैसे लग कहाँ रहे। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर चला गया, 77 साल तारीख तोड़ दी। मैं वहाँ पहुँचा मिठाई और फूल लेके, तो उनके फ़ारूक साहब से मैंने यही सवाल पूछा कि भाई इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितने लोग एक्टिव मेंबर हैं आपके? तो वहाँ टोटल मेंबरान की जो तादाद है वो 3,75,000 है, लेकिन एक्टिव मेंबर वहाँ भी 15-20 हज़ार है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो 2 से 3 मिलियन लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि किसी से भी पूछो कि यार ये फ्यूचर ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करेंगे, कहेंगे सर अकाउंट खोलेंगे, ये हमारा पैसा डुबा देंगे, खा जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलेंगे, पैसा डूब जाएगा। ये 4 आदमी ही मार्केट ऊपर नीचे करते हैं, और चारों के एडवाइज़र अहमद चौराहे साहब हैं। अब आप सोचो यार, एक आदमी 4 को ही चला रहा है, वो सारा पाकिस्तान कह रहा है पैसा डूब जाए। यार मैंने कभी अकाउंट नहीं खोला, मुझे स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता, लेकिन जब मुझसे भी कोई पूछता है मैं कहता हूँ भाई पैसा डूब जाएगा। तो अवेयरनेस सच्ची बात है नहीं है। जिसने अकाउंट नहीं खोला, जिसको स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, अब ये मुझे कह रहे थे 400 रुपये में 300 में गोल्ड इन्वेस्ट कर। तो मैंने दिल में सोचा 300-400 में सोने में इन्वेस्ट हो सकता है कि रात को सो जाए आदमी, क्योंकि सुबह उठ के 300-400 की सिवाय दिहाड़ी के सोना तो 3 लाख रुपए तोला है भाई। मेरे तो खुद फैमिली का बिजनेस है, तो 300 रुपये में तो सिर्फ सोने की हवा आ सकती है, क्योंकि शहर में बिजली तो आती नहीं है, तो खिड़की खोलें और सो जाए। 300 में तो भाई यही मिल सकता है। अगर मेरे मुल्क का आर्मी चीफ SIFC बना रहा है, वो पूरे मुल्क के निज़ाम को इस SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन में ला रहा है, तो मुझे उसकी तारीफ़ करनी है। मैं किसी सियासी जमात के एक शख्स जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, भाई हो सकता है मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, वो 70 साल में भी इतने हैंडसम हो कि आप सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से उनके फ़ैन बने हुए। तो भाई इस मुल्क का आर्मी चीफ सैयद भी है, हाफिज़ भी है, यंग भी है, हैंडसम भी है, तो फिर उसके भी पीछे चलो। उसमें क्या कमी है? ये इस मुल्क के आर्मी चीफ को अगर आप देखें ना, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तोहफा है। मैं तारीफ में नहीं कह रहा, हकीकत की बात कर रहा हूँ। हाफिज़ कुरान सैयद पाकिस्तान की तारीख का सबसे यंग आर्मी चीफ और मेरे ख्याल से सबसे हैंडसम। तो भाई फिर उसके पीछे फॉलोइंग करें ना। जब अगर वो इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना चाहता है, अगर वो हमसाया मुल्कों के पास जा जाके उन मुल्कों के सरबराहों को इस्लामाबाद बुला के उनके साथ खड़ा हो रहा है और कह रहा है आओ मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, SIFC के थ्रू करो। इस मुल्क की लाखों एकड़ ज़रई आराजी जो वडेरों के कब्जे में थी, वो कहता है इस मुल्क की है, इसमें आप ज़राअत में काम करें। इस मुल्क के ज़खायर, मादनियात, मिनरल्स, उसमें आके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के पास हर चीज़ मौजूद है, अगर उसको सही मैनेजमेंट कर ली जाए तो आप सबका उसमें हिस्सा है। लेकिन हम किस चीज़ में लगे हैं? जो मैंने बात की, हम सियासत में लगे। हमें पता ही नहीं हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हम बैरूनी ताकतों के इशारों पे नाच रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जो काम 77 साल में हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, भारत नहीं कर सका, आज हम अपने हाथ से सोशल मीडिया से बैठ के कर रहे हैं। अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली माओं के बेटों लालों की शहादत के ऊपर उनका मजाक उड़ा के। मैं उस माँ से मिला हूँ जिसके मियाँ ने इस सरहद की हिफाजत में शहादत दी, उसने अपने बेटे को उसी यूनिट में, उसी फौज में भर्ती कराया और बेटा भी शहीद हो गया। तो फिर मैं उस माँ के लिए क्यों बात अच्छी ना करूँ जो मेरी सरहदों की हिफाजत कर रहा है?
जो जवान खड़ा है। और अगर मेरे मुल्क का कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर वो मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए, उस मुल्क की मईशत के लिए, उस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, मेरे इन नौजवान बहन भाइयों के फ्यूचर के लिए जो पीछे बैठकर मुंतज़िर हैं किसी अच्छी खबर के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के रोज़गार के लिए, तो मैं क्यों उसकी तारीफ ना करूं, मैं क्यों उसके साथ ना करूं। हाँ, अगर कोई गलत करेगा तो फिर हम गलत के ऊपर गलत आवाज़ उठाने की भी हिम्मत रखें। फिर हम बिला वजह किसी की तारीफें ना करें, लेकिन मौका ज़रूर देना चाहिए। इस मुल्क के लिए काम करने वालों को, इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करने वालों को हमें और आपको उनका साथ देना पड़ेगा, तब जाके इस मुल्क की मईशत ठीक होगी। तो ये जो मेरे नौजवान, ख़ास तौर पे जो बहन भाई पीछे बैठे हैं, मैं सिर्फ उनको ये कह के इजाज़त लूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी। आप में से कोई यहाँ आकर बैठेगा, आप में से लीडरशिप आनी चाहिए, आप में से इन सिक्योरिटी एक्सचेंज के मालिक बनने चाहिए, आप में से ये ब्रोकरेज हाउस आपने खोलने हैं, इस मुल्क की मईशत आपने चलानी है। हम 30 साल पहले सुनते थे, सेठ आबिद साहब, अहमद चुनाई साहब जानते होंगे, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो किस्सा मुझे सुनाते थे कि मैं तो एक मज़दूर था, गंदम की बोरियां कंधे पे रख के मजदूरी करता था, लेकिन आज उसको जब वो सेठ आबिद बने तो पाकिस्तान के क्या कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया। तो एक मजदूर, एक मेहनत कश, और एक हर एक की हिस्ट्री है। आप किसी बड़े आदमी से पूछें, कोई माँ के पेट से अरबपति बनकर नहीं आता, आप में से बनेगा, लेकिन बड़े दिन से ये सिलसिला रुका हुआ है। आगे बढ़ें, हिम्मत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। अपने अंदर से हसद, नफरत, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को ठीक करना, एक दूसरे के खिलाफ जाना, इसको ख़त्म करें। आए एक दूसरे का मसीहा बन के इस पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए काम करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। आज हमारे साथ जो है वो नदीम मज़हर साहब, जो कि बुक फेस्टिवल यहाँ इन्होंने किया है, मैंने आना था उसमें पहले, अभी मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। एक और चीज़, जब तक किताब को, बुक को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, आपकी नॉलेज हमेशा अधूरी रहेगी। आपको भी मुबारकबाद देता हूँ एक शानदार फेस्टिवल को मुनक्किद करने पर। अहमद चुनाई साहब, खटक साहब का, बाकी हमारे जो खुर्रम ज़फ़र साहब हैं, उनका, सभी का बहुत मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अहमद चुनाई साहब से कि गवर्नर सिंध को शील्ड पेश करें, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। गवर्नर साहब गुलदस्ता पेश कर रहे हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के डायरेक्टर जनाब अहमद चुनाई साहब को। खुर्रम ज़फ़र साहब,
एक अच्छी एक्सपो है और इसमें इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो नई नस्ल है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी एजुकेशनल, कि जना वो सीखे कि गोल्ड में और करेंसीज़ में या कमोडिटीज़ के अंदर किस तरह काम होता है। और इसमें तमाम ब्रोकर्स इसमें अवेलेबल हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इस एक्सपो के अंदर जो मुख्तलिफ अकाउंट ओपनिंग और आगे सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्लस मार्केट के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। कि आज हमने ये पूरा इवेंट का इनेकाद किया है। इसका नाम है इन्वेस्ट एक्सपो, जो कि 2 दिन एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 4 में जारी रहेगा 14 और 15 तारीख तक। ये हमने ये कोलैबोरेशन की है कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के साथ, अपने इवेंट को कोलोकेट किया है ताकि लोग किताबें भी ख़रीदें और फाइनेंशियल नॉलेज भी हासिल करें। तो ये जो इवेंट है इन्वेस्ट एक्सपो, ये हम पहले इस्लामाबाद में मुनक्किद किया, फिर लाहौर में, और अब इसको कराची में लेकर आए हैं ताकि कराची की जो आवाम है वो उनमें हम आगाही पैदा कर सकें। इस इवेंट में थोड़ा सा मज़ीद मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमने एक ही छत के नीचे बहुत सारे एग्जिबिटर्स को जमा किया है जो कि बहुत डाइवर्स हैं, जिनका ताल्लुक कमोडिटी एक्सचेंज से है, स्टॉक एक्सचेंज से है, इंश्योरेंस से है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है कंपनी है। तो इन तमाम लोगों को अंडर वन रूफ हम लेकर आए हैं ताकि वो आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनको ये बता सकें कि मुल्क में बैंक में डिपॉज़िट करने के अलावा वो अपनी सेविंग्स किन किन जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इस तरह का इवेंट पहले कभी कराची में मुनक्किद नहीं हुआ, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जी, ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, जो हमारे पास जो फाइनेंशियल लिटरेचर की जो मुल्क में एक कमी देखी जा रही है, जिसमें से सिर्फ जैसे कि अभी कामरान साहब ने भी बताया कि सिर्फ 3,75,000 जो है वो सिर्फ अकाउंट है और 25 करोड़ की आबादी में, तो इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसके हवाले से ये जो है वो सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। अच्छा, मुझे आदर्श ये बताएं कि मिसाल के तौर पे एक आम इंसान जिसने स्टॉक ना देखा हो जी, जो ट्रेडिंग से वाकिफियत ना रखता हो जी, उसके पास पैसे हैं बैंक अकाउंट में डले हुए हैं जी, या वो मंथली कमाता है तो उसकी सेविंग साइड 5-10 हज़ार है, तो मिनिमम स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी, मिनिमम जो है वो 5,000 से शुरुआत होती है। उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने एक ब्रोकर्स असाइन किए हुए हैं, उन ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट ओपन करवा के उनको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जो हमारे जो वो है ब्रोकरेज फर्म्स, जैसे हमारा आदम सिक्योरिटीज़ है, वो वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के आप वहाँ पे आके वो हमें आपको लाइव एक ऐप देंगे, वहाँ पे आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं अकाउंट के थ्रू। अच्छा, वो फिर आपके पास ज़रूरत नहीं है उसको आने की? नहीं, घर बैठ के वन टाइम आना है बस? जी, वन टाइम आना भी नहीं है, सिर्फ घर बैठ के ये अकाउंट ओपन होगा, सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे घर बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, कोई हसल नहीं है, सब ईजी टू वो है। साजगार का जो शेयर था वो 1 साल पहले जो था वो 176 का था, जो आज वो शेयर है वो 1,1100-1,200 को भी टच कर चुका है। तो ये बस 176 का था 1200, हाँ, 1 साल के अंदर। तो बस ये एक छोटा सा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट के लिए, बस उससे अच्छे ब्रोकर से मिले और आदम सिक्योरिटी में ज्वाइन करें। जी, ऑफिशियल हाँ, तो जी, उस अच्छे ब्रोकर से मिले और ज्वाइन करेंगे तो आपको एक रिसर्च टीम होगी जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, इसकी वजह क्या है, क्योंकि फंडामेंटल्स इस कंपनी के अच्छे होंगे और वो जो है वो एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा रिसर्च टीम ही बता सकती है कि क्यों उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, उसके फंडामेंटल्स क्या है, फ्यूचर में जाके आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा। तो उस हिसाब से अच्छा ब्रोकर चूज़ करना एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट एक्सपो जो है वो बेसिकली जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है फॉर जनरल पब्लिक टू गेट एन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट कि जी जो आप इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत लिमिटेड लोग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी और मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी, तो उनके लिए एक जनरल पब्लिक के लिए एक बड़ा अच्छा वो दिया गया है कि इंसेंटिव के उनको नॉलेज आ जाए और अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। उस सिलसिले में इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द ऑर्गेनाइजर्स। पर्टिकुलर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेना, गोल्ड खरीद के रख देना या प्लॉट खरीद के रख लेना ये नहीं है, या बैंक में सेविंग रख लेना ये नहीं है। डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई हुई है और हमें अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाज़ार का यहाँ आने का मकसद भी है कि 27, 28 और 29 दिसंबर को एक्सपो सेंटर हॉल 3 में हमारा एक्सपो होने जा रहा है। हर साल होता है और ये बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है एक्सपो। पूरे शहर में आप हमारी एडवर्टाइजिंग देखेंगे, डिजिटल में आप बिल्कुल हमारी डिजिटल पे आप एडवर्टाइजिंग देखेंगे, इनफैक्ट आप अभी देख भी रहे होंगे। सो ये साल का बहुत बड़ा ग्रैंड एक्सपो होता है जिसमें बहुत से डिस्काउंट्स होते हैं, इनामात होते हैं,
बहुत सी ब्रांड्स आती हैं इस पे। अभी करंटली स्टेट बैंक ने 7% के पैकेज का अनाउंसमेंट की थी, जो अभी हमारा सीज़न चल रहा है, अभी राइस का, पैडी का, मेज़ का, मकई का। तो अभी हमारे करंटली जो है 7% पे जो है फार्मर ने काफ़ी फैसिलिटेट किया अपने आप को और काफ़ी उससे बेनिफिट लिया है। आसान घर फाइनेंस में आए लोग, जाहिर सी बात है हम लोग इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस कर रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। सर हमारा ABL फंड जो है इन्वेस्टमेंट के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, और बाकी जो आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनसे बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है ये।